In this topic, we are going to study degree of freedom. What is degree of freedom? See, actually, a particle, it can attain energy in many ways, and the number of ways in which a particle or a gaseous molecule can attain energy is known as its degree of freedom. Or else you can say that the number of ways in which a gaseous molecule can move is known as its degree of freedom. Why like this? Because whenever a gaseous molecule moves, it is going to attain energy. So if I calculate the number of ways in which it can move, then I'll be able to calculate its degree of freedom. So for example, suppose if a molecule is moving in space, then it will require 3 coordinates, right? Either it can move along x direction or y direction or z direction. So when a molecule is moving in space, it can move in 3 different ways, and so it can attain energy in 3 different ways. So degree of freedom is 3. Suppose if a molecule is moving in plane, then it will require 2 coordinates to specify its position. So a particle can move along either x-axis or y-axis. If it is moving in xy plane, if it is moving in yz plane, then it can move along y-axis or along z-axis, and it can gain energy. So the molecule in total can move in 2 different ways. So its degree of freedom is going to be 2. Suppose if a molecule is moving along a line, so it will be definitely able to move along one direction only. So degree of freedom will be 1. So I can say that the number of coordinates required to specify the position of the particle is also known as degree of freedom. तो हम जानते हैं कि स्पेस में हमें 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए, और अगर कोई पार्टिकल अलोंग अ लाइन मूव करता है तो we'll require only 1 coordinate. So accordingly we can now give the number of degree of freedom for the particular molecule. See now how we can calculate degree of freedom. Suppose say in a system we have total n number of particles, and suppose if these particles have k number of independent relations between them, then the number of degree of freedom of the system is given by this equation. So we'll understand this by example. Suppose if we have a monoatomic gas molecule, मतलब उसके अंदर सिर्फ एक एटम होगा. So like this is a monoatomic gas molecule, और ये हमारी कोऑर्डिनेट सिस्टम है. सो नाउ सी, दिस मॉलिक्यूल कैन मूव आइदर इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन और इन दिस डायरेक्शन. सो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 मिलना चाहिए हमें. सो हम देखते हैं वेदर हमको इस इक्वेशन में से मिलता है कि नहीं. सो मोनो एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल है, सो नंबर ऑफ पार्टिकल कितना हो गया है? 1 हो गया. सो इंस्टेड ऑफ n आई विल बी राइटिंग 1. Now number of relations between the particles. अगर एक ही पार्टिकल है तो वो रिलेशन नहीं बना सकता है, तो नंबर ऑफ रिलेशन इज गोइंग टू बी 0. सी यहाँ पर डाई एटॉमिक गैस मॉलिक्यूल में वी हैव 2 molecules like this, 2 molecules, तो they can form 1 bond, 1 relation between 2 molecules. बट यहाँ पर तो सिर्फ एक ही एटम है, राइट? तो वो कैसे रिलेशन बना सकता है? सो k इज इक्वल्स टू 0 हो गया. सो नाउ वील सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ n एंड k इन दिस फॉर्मूला, एंड वील ऑब्टेन डिग्री ऑफ फ्रीडम एज 3, विच वी वर एक्सपेक्टिंग. नाउ वील सी फॉर डायएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल. सो डायएटॉमिक है, सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज गोइंग टू बी 2. सो अगर ऐसे 2 पार्टिकल्स हैं तो इनके बीच में रिलेशन कितने बन सकते हैं? ओनली 1. सो k के बदले हम लिख देंगे 1. अगेन हमारा जो फॉर्मूला है उसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो इंस्टेड ऑफ दिस n आई हैव टू राइट 2, इंस्टेड ऑफ दिस k आई हैव टू राइट 1. सो आई विल ऑब्टेन डिग्री ऑफ फ्रीडम एज 5. ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. यहाँ पर थोड़ा इजी था कि ये ऐसे जा सकता है, ऐसे और ऐसे, एंड इट कैन गेन एनर्जी इन 3 वेज. अब यहाँ 5 तरीकों से इसको एनर्जी मिल सकती है. ये समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है. विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. सो जस्ट सी इफ दीज आर द कोऑर्डिनेट एक्सिस, एंड सपोज इफ दिस मॉलिक्यूल इज अलाइंड लाइक दिस वे, then this whole setup, right, this whole assembly can move in this direction like this,
or else this hole can move in upward direction, or else this hole can come out along this z axis, right? So ये 3 तरीके तो हो गए जिससे वो एनर्जी गेन कर सकता है। तीनों में हम लीनियर मोशन करवा रहे थे। देखो ये ऐसे चल रहा है, यहाँ से ऐसे ऊपर जा सकता है और फिर यहाँ से ऐसे बाहर की तरफ आ सकता है अलोंग जेड एक्सिस। सो ये लीनियर मोशन कर रहा था, तो 3 तरीके तो वो हो गए जिससे वो मूव कर सकता है। बाकी के 2 तरीके कौन से बचे हैं? सो नाउ सी इट कैन परफॉर्म रोटेशनल मोशन। ये एक्सिस है, इस एक्सिस के अराउंड ये दोनों जो है वो ऐसे गोल गोल घूम सकते हैं। लाइक इफ दिस इज द एक्सिस एंड दिस इज द मॉलिक्यूल, तो इट कैन मूव लाइक दिस, रोटेशन हो सकता है। इफ दिस इज द एक्सिस तो ये ऐसे पूरा गोल 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 रोटेट होगा अराउंड द एक्सिस। सो इस एक्सिस के चारों बाजू ये रोटेट कर सकता है। तो ये 4th तरीका हुआ मोशन का, रोटेशनल मोशन। फिर ये वाला जो एक्सिस है जो इस तरीके से बाहर आ रहा है, इसके चारों बाजू भी ये गोल गोल घूम सकता है। तो दिस इज वन मोर मेथड, ये एक और रोटेशनल मोशन कर सकता है अबाउट जेड एक्सिस। सो ये 5वां तरीका हो गया। ये एक्स एक्सिस के चारों बाजू रोटेशन नहीं कर सकता है बिकॉज इट इज अलाइंड अलोंग एक्स एक्सिस, तो इसके चारों बाजू ऐसे गोल 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 नहीं घूम सकता है, राइट? सो इस तरीके से टोटल 5 तरीके हैं जिससे ये मूव कर सकता है। 3 लीनियर मोशन और बाकी के 2 रोटेशनल मोशन अबाउट वाई एक्सिस एंड रोटेशनल मोशन अबाउट जेड एक्सिस। सो टोटल 5 तरीके हो गए जिससे ये मूव कर सकता है और एनर्जी गेन कर सकता है। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल इज 5. नाउ विल सी फॉर ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल। नाउ ट्राइएटॉमिक गैस मॉलिक्यूल है वो 2 तरीके से अलाइन हो सकता है। सपोज इफ द 3 मॉलिक्यूल्स आर इन स्ट्रेट लाइन, then number of molecules obviously we'll write 3. Number of relations, see ये तीनों कैसे relation बना सकते हैं? This is one relation, this is another relation. So instead of k we'll write 2, and when we substitute these values in our formula we obtain degree of freedom as 7. अब सेम थिंग, ये तीन मॉलिक्यूल है, जरूरी नहीं है कि ऐसे एक दूसरे के पीछे लाइन में ही हो, पॉसिबल है कि वो लाइन में ना हो। तो दिस इज फॉर लीनियर मॉलिक्यूल। नाउ वील सी फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। सो सी इफ द मॉलिक्यूल्स आर नॉन लीनियर देन वी कैन मेक 3 रिलेशंस बिटवीन देम। आप नॉन लीनियर तरीके से कैसे भी 3 मॉलिक्यूल्स को रखोगे ना, वो बना देंगे ट्रायंगल ही, चाहे वो इक्विलैटरल ट्रायंगल बने या ना बने। सपोज सी दिस, और एक को थोड़ा सा यहां रख दी हूं। सो अगेन दिस ऑल्सो फॉर्म्स अ ट्रायंगल ओनली। सो अगर नॉन लीनियर होंगे तो ट्रायंगल ही बनेगा एंड 3 रिलेशंस विल बी देयर। सो नंबर ऑफ एटम्स इज 3, देन नंबर ऑफ रिलेशंस इज 3. सो डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर मैं कैलकुलेट करूंगी तो इट विल बिकम 6. So in linear molecule degree of freedom was 7. For non-linear triatomic molecule degree of freedom was 6. So जैसे आगे हमने डायटोमिक और मोनोएटॉमिक के लिए एक्सिस ड्रॉ करके मोशन समझा, वैसा यहाँ पर समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा बिकॉज यहाँ पर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आ जाता है। आगे जो मोशन था उसमें मॉलिक्यूल लीनियर मोशन कर सकता था, रोटेशनल मोशन कर सकता था। यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा आ रही है दूसरी, वो वाइब्रेशनल मोशन की वजह से आ रही है और वो हम ऐसे फिगर में समझ नहीं सकते हैं, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। सो इसलिए यहाँ फिगर ड्रॉ करके आई वोंट बी एक्सप्लेनिंग. So from all these we can conclude that gaseous molecules, they can have different types of motion and they can gain energy because of different types of motion. So उसमें सबसे पहला कौन से टाइप का मोशन हो जाएगा? It can gain kinetic energy because of linear motion. That is the translational motion. तो वो एनर्जी कैसी होगी? हाफ mv². दूसरा मोशन वो कैसा कर सकता है? रोटेशनल मोशन कर सकता है. तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ I ω². व्हाट इज I? I is analog, rotational analog of motion. This we have studied in chapter 7. So instead of mass I can write moment of inertia, and instead of linear velocity I can write angular velocity omega. So this is the rotational kinetic energy, and last one will be the kinetic energy due to vibrational motion. This is achieved at a temperature greater than 5000 Kelvin.
इसका कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास. सो इन 3 तरीके से हमारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मोशन कर सकते हैं एंड दे कैन अटेन एनर्जी, एंड दैट विल बी द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम.